اور نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آج عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے اعتماد پر شکریہ ادا کریں گے۔ ملاقات میں پنجاب میں اسپیکر، کابینہ اور دیگر اہم تقرریوں کے لیے مشاورت بھی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ملاقات آج اہم ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آج عمران خان سے ملیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ GNN صدام مانگڑ سے، جس وقت بنی گالہ میں موجود ہیں۔ صدام، یہ بتائے گا کہ ملاقات کب تک متوقع ہے اور کن امور پر تبادلہ خیال ہوگا؟ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی ہیں وہ آج سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور اب وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں ملاقات کے لیے۔ ملاقات میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کی کابینہ ہے، جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو پنجاب میں اب حکومت سنبھالنے کے بعد جو اقدامات ہیں اس حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیا ڈیلیور کیا جائے۔ اس پر تفصیلی مشاورت کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہے وہ یہاں سے پھر جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ جی، صدام مانگٹ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کل لاہور آئیں گے۔ حکومت سازی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کے پرفارمنس روڈ میپ پر بھی بات چیت ہوگی۔ تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے۔ واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واصف، بتائیے کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں؟ دیکھیں، حکومت سازی کے جو اہم معاملات ہیں وہ تو آج سابق وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات میں ہی چودھری پرویز الہی طے کر لیں گے، لیکن کل عمران خان دوبارہ سے لاہور آئیں گے اور اہم فیصلے کل متوقع ہیں، خاص طور پر کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے کہ کون کون لوگ جو سے ہیں MP ان کو دوبارہ سے منسٹر بنایا جائے جن کی کارکردگی پچھلی کابینہ میں بہتر تھی، اور نئے جو لوگ کون سے اس کے اندر ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ اور کل جو ملاقات لاہور میں عمران خان کا دورہ ہے، اس کے اندر وہ چودھری پرویز الہی سے الگ سے ملاقات بھی کریں گے، جبکہ دیگر پارٹی جو رہنما ہے وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے۔ اور پنجاب کے اندر جو حکومت سازی کے امور اس کے اوپر عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی، اور پنجاب حکومت آئندہ کس طرح سے اپنی پرفارمنس دے گی اور کیا روڈ میپ ہوگا، اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی۔ شکریہ واصف محمود، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے ساتھ ہی پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور CPO لاہور بلال صدیق کمیانہ اور DG اینٹی کرپشن پنجاب رانا عبدالجبار کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے ساتھ ہی پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی گئی ہے۔ CPO لاہور بلال صدیق کمیانہ اور DG اینٹی کرپشن پنجاب رانا عبدالجبار کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ GNN فیاض ملک سے۔ فیاض، کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں مزید؟ بالکل، تبدیلیوں، تبادلوں، ٹرانسفر، پوسٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تبدیل ہونے اور چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر لگنے کے بعد جو ہے پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابتدائی طور پر CPO لاہور کے عہدہ پر فائز بلال صدیق کمیانہ کو فوری طور پر پنجاب سے ریلیو کر کے انہیں IB رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ دوسرا بڑا تبادلہ DG اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار کا ہوا ہے۔ ان کو بھی تبدیل کر کے فوری طور پر پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا اور IB میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح DPO جنگ کے عہدہ پر تعینات سردار غیاث گل کو بھی جو ہے پنجاب سے فوری طور پر ریلیو کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 بڑے تبادلے ہوئے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد پنجاب کی بیوروکریسی میں پہلے بڑے 3 تبادلے ہیں جو کہ پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں افسر جو ہیں یہ سابقہ حکومت کے دور میں ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ بلال صدیق کمیانہ جو کہ CPO لاہور تھے اور DG صحیح، تو بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ فیاض ملک، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آئین نے سب اداروں کو حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے۔ کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 3 ججز کے فیصلے نے جمہوریت کا عدالتی قتل کیا۔ ہم نے کبھی فوجی امروں کو قبول نہیں کیا تو عدالتی مارشل لاء کو بھی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے کے لیے تحریک انصاف میں جوڑ توڑ۔ شاہ محمد قریشی کے صاحبزادے زین قریشی اسپیکرشپ کے خواہش مند۔ سبطین خان اور میاں محمود رشید بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔
साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुतहरिक हैं। पार्टी में मियां असलम इकबाल के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी जल्द कार्रवाई का इम्कान है। वासिक़ क़य्यूम और मलिक तैमूर नए डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों में शामिल हैं। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। उधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब तब्दील मोहम्मद खान भट्टी को वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुक़र्रर कर दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 7 पैसे इजाफे से 236 रुपये का हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ डॉलर 232 रुपये 93 पैसे की सतह पर बंद हुआ था और आज इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 7 पैसे इजाफे के बाद 236 रुपये का हो चुका है, जबकि गुज़श्ता रोज़ डॉलर 232 रुपये 93 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। और पहले निशाने हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। उनके मज़ार पर पुरवकार तक़रीब का इनकाद भी किया गया। पुरवकार तक़रीब कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के आबाई गाँव सांघोरी गोजर खान रावलपिंडी में की गई। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तक़रीब में सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। कौम के अजीम सपूत ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। कश्मीर की वादियाँ आज भी उनके शुजाअत और जवामर्दी की गवाह हैं कि किस तरह कैप्टन मोहम्मद सरवर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े। और रावलपिंडी के हाजी कैंप में जौहर में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी शनाख्त ताहाल नहीं की जा सकी है। तफसीलात पर बात करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें कि रावलपिंडी का हाजी कैंप है, वहाँ पर जोहड़ में नहाते हुए 2 बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं। बच्चों के डूबने पर रेस्क्यू का इत्तला की गई, जिस पर रेस्क्यू की जानिब से दोनों बच्चों की जो लाशें हैं उनको निकाल लिया गया है, जबकि बच्चों की जो शिनाख्त है वो भी कर ली गई है। दोनों बच्चे जो हैं उनकी उम्र 10 साल थी। एक की जो नाम है, एक का फजल है, जबकि दूसरे बच्चे का नाम अबू बकर है। दोनों 10 साल के थे और नहाते हुए वो दोनों जोहड़ में डूब गए थे, जिसके बाद उनकी लाशों को निकाल लिया गया है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब जो बच्चे थे वो चूंकि ये वहाँ पर एक छोटा सा जोहड़ है जिस पर ये गुज़िश्ता रोज चूंकि इस्लामाबाद में बारिश भी जो है वो काफी तेज थी और ये बच्चे उस जोहड़ में नहाने के लिए गए थे, तब ये बच्चे जो है उसमें डूब गए थे, जिनकी लाशें आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उस जोहड़ में से निकाल ली गई और दोनों बच्चों की जो शनाख्त है वो भी कर ली गई है, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। जी शुक्रिया इदरीस अब्बासी, आपने आगाह किया। पाकिस्तान ने CPEC पर भारतीय वजारत खारजा के मुज़क्का खेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बेबुनियाद और गुमराहकुन बयान को मुस्तरद करते हैं। CPEC पर शकूक व शुबहात भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ मखसूस मनफी एजेंडे को जाहिर करता है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने CPEC पर भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुज़क्का खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की है और भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बेबुनियाद और गुमराहकुन बयान को मुस्तरद करते हैं। CPEC पर शकूक व शुबहात भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और मखसूस मनफी एजेंडे को जाहिर करता है और पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद किया गया है भारत के बयान को। मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, मज़ीद क्या कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से? जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बेबुनियाद और गुमराहकुन बयान को मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान कहते हैं कि CPEC तब्दीली का मनसूबा इलाका इस्तेहकाम, बाहमी तावन और मुश्तरका तरक्की का महवर है। CPEC एक सड़क, एक रास्ता इक़दाम का अवलीन पाक चीन इश्तराक का आयनादार है। CPEC खित्ते की आबादी को तरक्की के सफर पर गामजन करने का कुलीदी मुहर्रिक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि चीनी सरमायाकारी ने पाकिस्तान की तरक्की में हायल तवानाइयाँ बुनियादी ढांचे की रुकावट दूर की हैं और इसमें कहा गया है कि भारत की मनफी जहनीत ने हर कई दहाइयों से जनूबी एशिया में समाजी इक़्तिसादी तरक्की को रोक रखा है। ये तासर मुस्तरद करते हैं कि CPEC भारतीय खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर असरअंदाज होता है।
پاکستان نے کہا ہے کہ در حقیقت بھارت ریاست جموں کشمیر پر 7 دہائیوں سے قابض ہے اور ہندوستان مقبوضہ خطے میں صحیح۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور بھارت بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ پاکستان قرارداد اس صورتحال کو مسترد کرتا ہے، یہ کہا گیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے۔ میاں شاہد، آپ نے تفصیلات بتائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت کے باعث شہری پریشان ہیں۔ اس صورتحال سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ GNN مریم رفیق۔ جی مریم، کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ فیصل آباد میں؟ عوام مہنگائی سے پریشان ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹوروں پر بھی عوام کو جو ہے سستی اشیاء دستیاب نہیں ہے۔ گھی کے بعد جو ہے فیصل آباد کے تقریباً شہر میں 109 یوٹیلیٹی سٹور ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کسی بھی قسم کی جو دال ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے یہاں پر جو ہے دالیں موجود نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور نہ ہی یہاں پر کسی بھی قسم کی A اور B کیٹیگری کے چاول موجود ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم بات کریں اوپن مارکیٹ کی یا ماڈل بازاروں کی، تو وہاں پر دالوں کی جو قیمتیں ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، جبکہ یوٹیلیٹی سٹوروں کا رخ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دالیں نہ موجود ہونے کی وجہ سے ان کو اوپن مارکیٹ سے ہی مہنگے داموں جو ہے دالیں خریدنا پڑ رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ دالوں کی جو یہاں پر ضرورت ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، اس کی کوالٹی کو بھی بہتر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جس میں آٹا، چینی، گھی ہو گیا، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر عوام کو مہیا کی جائے تاکہ ان کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو سکے۔ جی۔ اور گجرانوالہ ای لائبریری میں امن کے نام سے تھیٹر پلے پیش کیا گیا۔ تقریب میں ملک بھر سے سماجی اور نفسیاتی ماہرین، وکلاء، اساتذہ اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گی بینش راجپوت۔ جی، گجرانوالہ ای لائبریری میں جو ہے وہ امن کے نام سے جو ہے وہ سیمینار کا انعقاد ہوا، جہاں ہم نے دیکھا کہ ملک بھر سے وکلاء، اساتذہ اور NGO سیکٹر سے بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہنا بخاری صاحبہ موجود ہیں۔ ہم مزید ان سے بات کرتے ہیں سیمینار کے حوالے سے۔ بتائیے گا ہنا، کیا مقصد تھا اس آج کے جو سیمینار ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمزم اس قدر بڑھ گیا ہے اور شدت پسندی جو اس قدر بڑھ گئی ہے، اس کو کم کیا جائے اور جو ایک مساوات کی اور ایک امن کی فضا ہے اس کو فروغ دیا جا سکے، ایک دوسرے کے لیے برداشت اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا جو میسج ہے وہ آج دیا جا سکے۔ کہ یہ کہنا تھا کہ جیسا کہ سیمینار کا جو سلوگن ہے وہ بھی پیس ہے، امن ہے، تو اس کا مقصد جو تھا سیمینار کو وہ یہی تھا کہ معاشرے میں رنگ، نسل، ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر جو بڑھتا ہوا انتشار ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوششوں کو فروغ دیا جائے اور نوجوان نسل میں امن اور محبت کے جو جذبات ہیں ان کو بھی ابھارا جائے۔ جی۔ اور اسلام آباد میں بھی بادلوں کا راج ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے وکیل بڑائچ۔ شہر اقتدار کے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ بادلوں کے باعث جو ہے مارکلا ہلز کی پہاڑیاں خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے رات بھر سے ہی جاری رہا تھا، جس کے باعث اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی تھی۔ ہلکی اور ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث جو ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم خوشگوار ہونے کے باعث جو ہے وہ درجہ حرارت میں خاصی کمی آئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد میں بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 29 اور کم سے کم جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، اولڈ سٹی ایریا، کھارادر، کاغذی بازار، پاکستان چوک، حقانی چوک میں پانی جمع ہو گیا اور اردو بازار کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ سیویج کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور کئی جگہوں پر اس وقت پانی جمع ہے۔ لیاقت آباد نمبر 10 انڈر پاس شریف آباد انڈر FC ایریا میں بھی پانی جمع ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے۔ صدر PIDC کے اطراف بھی مختلف مقامات پر بارش کا پانی تاحال موجود ہے۔ ٹیپو سلطان روڈ اور شہید ملت روڈ پر مختلف جگہوں پر بارش کا پانی جمع ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سر شاہ سلیمان روڈ پر پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب بھی بارش کا پانی تاحال موجود ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر انڈر پاس پر موجود ہے ہماری نمائندہ شارقہ کمال، ان سے تفصیل لیتے ہیں۔ شارقہ، بتائیے انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نکاسی آپ کا کام اب تک مکمل کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ جی شکریہ۔ مونسون کے تیسرے اسپیل میں جو بارشوں کا آغاز ہوا اس کے نتیجے میں تقریباً تمام سڑکیں تو زیر آب آئی ہیں، ساتھ ساتھ تمام انڈر پاسز بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت لالو کے 10 نمبر موجود ہوں، میرے کیمرہ مین فیضان آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پورا انڈر پاس جو ہے وہ اس وقت پانی سے بھرا ہوا ہے۔ شہدائے حق کے نام سے انڈر پاس ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گاڑیاں خراب بھی ہو رہی ہیں۔ اب پورا انڈر پاس جو یوں ہی پانی سے بھرا ہوا ہے، دونوں انڈر پاسز یہاں سے جانے والے بھی اور آنے والے بھی، دونوں پاسز جو ہے وہ
पानी से यूं ही भरे हुए मोटरसाइकिल हजरात जो है खासतौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी बाइक्स खराब हो जा रही हैं, गाड़ियां जो है क्योंकि गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि पानी की वजह से समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं है, तो जो गाड़ियां हैं वहाँ फंस भी जा रही हैं। काफ़ी परेशान है शहरी। तो कहना है कि तमाम जो अंडरपासेस बारिशों का जो पहले से पेशगोई करती जाती है, महकमा मौसम की तरफ से भी कहा गया था कि मॉनसून का तीसरा स्पेल जो है सबसे ज़्यादा जो है उसमें बारिशों मुतवक्का है, मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया था। उसके बावजूद कोई इंतजामात नहीं किए गए, पहले से ही इंतजामात किए गए ताकि बारिशों के बाद जो शहरियों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे उन्हें निजात मिल सके। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मौसमी सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों की कीमतों में 30 से 100% तक इजाफा हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। जी शुक्रिया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम शहरी के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कई गुना जो है वो कीमतें आम मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जिस तरह से जो है टिंडा है वो गुज़श्ता हफ्ते तक 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा था, जो कि आज जो है वो इस वक्त मुल्तान की मंडियों में और मुल्तान की दुकानों पर जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। बात की जाए दीगर सब्जियों की, जिसमें हरी मिर्च है वो भी 30 से 40 रुपये पाव में फ़रोख्त की जा रही थी, जो अब से 50 से 60 रुपये फ़ी पाव पर फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह बैंगन जो है, जो आम घरेलू इस्तेमाल में भी लाया जाता है लेकिन सस्ता होता है कंपैरेटिवली, गुज़श्ता हफ्ते तक वो 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, जो कि अब जो है उसके दाम जो है वो डबल हो चुके हैं। 150 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो आज बैंगन भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर जो मौसमी सब्जियां हैं उनके दाम इस वक्त बढ़ चुके हैं। कुछ जो है वो बारिशों की वजह से महंगा हुआ है और कुछ जो है वो मनमाना इजाफा किया गया है दुकानदारों की तरफ से, और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो जो आम शहरी हैं उनकी जेबों पर मज़ीद माशी बोझ बढ़ रहा है। जी। पेशावर में कहीं बादलों के डेरे हैं और कहीं बूंदाबांदी जारी है। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा चीरन कामरान अली शाह। जी कामरान, कैसा मौसम देख रहे हैं? जी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आसमान पर काली घटाएं छाई हुई है, कहीं पर मतला जुज़वी तो कहीं पर मुकम्मल अबरालूद है। हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है और महकमा मौसमियात ने सूबे के बालाई और मैदानी इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ आज बारिश की पेशनगोई की है। इसी के साथ पेशावर और कई बालाई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सूबे की मजमूई दर्ज हरारत जो है वो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है और कम से कम दर्जा हरारत पेशावर का 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पेशावर में भी आज किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि पेशावर और गिरदोनवाह में सुबह होने वाली बारिश से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। हल्की ठंडी हवा चल रही है जिसमें नमी का तनासुब 72% है, जबकि रफ्तार 21 किलोमीटर फी घंटा है। जी। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के जो असातिज़ा हैं वो गुज़िश्ता 10 रोज़ से भूख हड़ताली कैंप लगा कर बैठे हैं। असातिज़ा का कहना है कि अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज को मज़ीद वुसअत देंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार असातिज़ा के कैंप में मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल वो बताएंगे। जी शुक्रिया। बिल्कुल बलुचिस्तान भर के गवर्नमेंट टीचर आइनी एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में गुज़िश्ता 10 रोज़ से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे हैं। इनका यही डिमांड है कि उन्होंने हमारे साथ कई बार जो है इस हवाले से जो है गुफ्त शुनीद की, मगर इसके बावजूद जो हमारे मुतालबात है वो ताल अल नहीं किए जा रहे हैं। इनका ये मुतालबा है कि जो गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन आइनी है उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहों में जो है 50% इजाफ़ा किया जाए, जो अदालत के अहकामात है। इसी तरह जो टीचर्स के लिए जो है कॉलोनी के बनाया जाए और साथ साथ जो लवाइकिंग का कोटा है उसको भी बहाल किया जाए। इसी तरह जो महंगाई के इजाफे के साथ जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ उसी तरह जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी जो है इजाफा किया जाए, जबकि साथ साथ दीगर मुतालबात है वो भी ताल अल नहीं हुए, जिसके बाद वो गुज़िश्ता 10 रोज़ से कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए हैं। इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात के बावजूद हमारे मुतालबात हल नहीं किए जा रहे, जिसके बाद वो आज एहतजाज करने पर मजबूर है। उनका ये कहना है कि आज अगर हमारे मुतालबात इसी तरह तस्लीम नहीं किए गए तो आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा, जिसमें सख्त से सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। जी
कोह सलमान के पहाड़ों से आने वाला बारिश का सैलाबी पानी राजनपुर शहर में दाखिल होने का खदशा पैदा होने लगा है। चकजंदा के मुकाम पर सेम नाले के हिफाजती बंद कमजोर होने के बायस पानी शहर में दाखिल हो सकता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN इमदाद हुसैन। जी बहुत शुक्रिया जी। कोहे सुलेमान से आने वाली बारिशों ने जगह जगह पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त जो फतेहपुर रोड पर मौजूद हूँ, सेम नाला मेरे करीब है और कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि किस तरह ये आबादी सारी जो है इस वक्त पानी में डूब चुकी है, जबकि इस वक्त 4 किलोमीटर का फासला है जो राजनपुर में। खुदा न खास्ता अगर बंद टूटा तो पानी राजनपुर शहर में दाखिल हो जाएगा। लोग इस वक्त जो इंतज़ामिया को कोस रहे हैं कि इन्होंने अगर बर वक्त कोई इक़दाम किए होते तो आज लोगों की फसलें तबाह ना होती। पानी जो है पीछे से फसलों में दाखिल हो चुका है। दरा 66 से 26,000 क्यूसेक का पानी जो राजनपुर में आया है उसने तबाही मचा दी है। जबकि रुझान की अगर बात की जाए तो रुझान के दर्जनों देहात हैं वो भी इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इंतज़ामिया की जानब से किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ रेस्क्यू 1122 और जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो हमें कोई इक्का दुक्का जगह पर मौजूद नज़र आए हैं। जबकि इसके अलावा इंतज़ामिया सिर्फ कागज़ों की खाने पुर करने में मसरूफ़ है। शहरियों और जो देहात में बसने वाले लोग हैं उन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि खुदारा फिलफौर नोटिस लिया जाए और जो इंतज़ामात हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि जो नुकसान जिन लोगों का नहीं हुआ वो उनको नुकसान से बचाया जा सके। जी। और जफरवाल में नाला डेक पर जंडियाला के मकाम पर सैलाबी रेलों के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे राना यासीन। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हूँ ज़फ़रवाल में नाला डेक पर जंडियाला के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मैं पानी के बहाव की बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पर 2000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो मंगवाल और दियोली ये 2-3 देहात हैं यहाँ पर जो है दफ़ा नहीं बनाया गया, हिफाजती बंद जो है नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से नाला डेक में जब पानी 20 से 25,000 क्यूसेक आ जाता है तो ये पानी जो है करीबी खेत जो है उनमें चला जाता है और जो करीबी आबादियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। हर साल ये जब भी नाला डेक में पानी 20,000 से क्रॉस करता है तो जो करीबी आबादियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। और यहाँ पर किसानों का कहना है कि उनकी जितनी फसल जो है वो ज़ेरे आब आती है, लाखों का नुकसान होता है। यहाँ पर जो किसान हैं वो आला हुकाम से ये अपील कर रहे हैं कि उनका यहाँ पर हिफाजती बंद बांधा जाए ताकि हर साल उनका जो होने वाला नुकसान है उससे बचा जा सके। जी। और आग से झुलसकर जख्मी होने वाले कराची के ज़िला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल सत्तार ईसानी अबूधाबी के हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी मैयत कानूनी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान लाई जाएगी। झुलसकर जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी अब्दुल सत्तार ईसानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद अबू ज़हबी के अस्पताल में चल बसे। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अब्दुल सत्तार ईसानी चंद रोज कबल अपने घर में होने वाली आतिशज़दगी में बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें इब्तिदाई तौर पर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था जहां वो ICU में ज़ेरे इलाज थे। हालत में बेहतरी न होने के बायस डिप्टी कमिश्नर को कराची से अबू ज़हबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके घर आग लगने का वाक़या किचन में मौजूद गैस सिलेंडर फटने के बायस पेश आया था, जिसके नतीजे में उनका 50% जिस्म झुलस गया था। अब्दुल सत्तार ईसानी शिकारपुर से ताल्लुक रखते थे जो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। पसमानदान में अहलिया, 4 बच्चों और 4 बहनों और वालदा को सोगवार छोड़ा है। और नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की कमर तोड़ कर रख दी है। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चावल की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिससे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। तफसीलात बताएंगे शौकत अली। जी, आटा, चीनी, घी, दालें, चावल हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, मगर अब ये चीज़ें इस कदर ओपन मार्केट में महंगी हो गई हैं कि जो उनकी कीमतें सुनता है शहरी उस पर सख्ता सा तारी हो जाता है। अगर जो बात करें तो दालें, जो हर किस्म की दालें, चाहे वह दाल मसूर है, दाल चना है और दाल मसर है, इसकी जो कीमत है 70 से 80 रुपये फ़ी किलो मार्केट में महंगे हो चुके हैं। चावल जो हैं वो तकरीबन 100 रुपये किलो तक महंगे हो चुके हैं। और इसकी तरह अगर जो घी की बात करें तो घी का कोई जो पैक है वो 570 रुपये से कम नहीं है। और कुकिंग ऑयल जो है वो भी इससे भी 590 रुपये तक 1 लीटर का कुकिंग ऑयल का पैक है। तो शहरी सस्ती अशिया ज़रूरिया के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ये सूरत हाल है, दालें, चावल और कोई भी दाल यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। आटे की सप्लाई भी बंद है और सिर्फ चीनी और घी है। उसके लिए भी आपको शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार है। आपको शनाख्ती कार्ड के बाद मोबाइल नंबर देना पड़ता है, उसके बाद नादरा का तस्दीकी कोड आता है, उसके बाद आप ये सस्ती चीज़ें ले सकते हैं। तो शहरियों का इस बारे में ये कहना है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और ख़ाली हाथी घरों की राह ले रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। यहाँ पर सस्ती चीज़ों के लिए
आते हैं, लेकिन यहाँ चीज़ों की सप्लाई नहीं है। अब टेंडर किसने करने हैं, इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है जी।